Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College, Vapi. Our subject entrepreneurship development with respect to your semester third. As you all are aware that we have already started our unit number 2, that is entrepreneurship, creativity and innovation. As after long days the lectures has been conducted, it's been scheduled in our video lecture, so I'm just giving a revision about a topic which we have been covered. So you know very well what are the contents of the chapter. We have already been covered a topic that is meaning of creativity, types of creativity, even the three reason why people are motivated to be creativity. The creative process is being left. Then we have learned the importance of creativity in entrepreneurship, and then we have learned the techniques of stimulating creativity. Today we will learn the manager responsibility in terms of creativity. So you know very well, creativity is nothing but to do something new or somehow some valuable need to be formed. We know very well creativity is an ability of a person to come up with a new ideas and to identify the new and a different way of looking at the problems and opportunity. Whatever opportunity is coming in front of you, you need to look in a different way. You need to generate idea from that, and you need to identify the different way of looking at opportunity. If that is a problem, then you need to solve the problem in minimum cost and with a minimum utilization of the resources. So we know what is creativity. Creativity is nothing but an act of turning new and imaginative ideas into real world. So creativity is an ability to perceive the world in a new way. You will look the world in a different viewpoint. You will look the world in a new way. That is creativity. Now you know very well creativity is nothing but a tendency to generate or to recognize ideas and alternatives and the best possibility that help us to have a solving of problems and to communicate with our stakeholders in smooth way, and to generate a market where the demand of the product can be increased. After that, we have learned the types of creativity. You know very well. Technical creativity मतलब क्या होगा? It is a totally a pure creativity where something new product or a new technology is being developed. I'm just giving a revision, so just I'm identifying the main meaning of this, the thing which have been already covered. Non-technical creativity is in a creativity where you are having an idea which is related to your management concept, management system, entrepreneur mission, style of management, growth, style of management, growth strategy and organization structure. Now after that, the mainly there are four types of creativity, but we are having first one is deliberate and cognitive creativity. That means यहाँ पे आप पर्पस वे में अपनी स्किल के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से आप काम करोगे. दैट इज डेलिबरेटरी एंड कॉग्निटिव क्रिएटिविटी. डेलिबरेट एंड इमोशन क्रिएटिविटी मतलब क्या होगा? यू विल वर्क और you will bring your creativity which is totally based on the state of emotion. Spontaneous and cognitive creativity मतलब क्या होगा? यहाँ पे when you are looking up the problem solving, at that time there is no idea to solve the problem, but whenever you are working in different way, ठीक है, आप कोई और ही काम कर रहे हैं और उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया मिल गया, दैट विल बी अ spontaneous and a cognitive creativity. So when you are getting the solution of the problem at a solution आपको फिगर आउट हो रहा है, जहाँ पे आप अपना अनकॉन्शियस माइंड जो है वो वर्क कर रहा है और उसके बेस पे आपको अचानक से वो आइडिया जनरेट हुआ. ठीक है,
आपको अचानक से आइडिया जनरेट हुआ, उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एंड कॉग्निटिव क्रिएटिविटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लेक्चर में डिलीवर कर रहे हो, आप लेक्चर सुन रहे हो, उस टाइम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया मिल गया, दैट विल बी अ स्पॉन्टेनियस एंड कॉग्निटिव creativity. And in that also we learning about the deliberate and emotional creativity. Now we have learned about the three reasons why people are motivated to be creativity. The first reason is to have a new and communicative, you need to have a innovative idea, इसलिए आप मोटिवेट होते हैं टू बी अ क्रिएटिविटी, यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसलिए आप क्रिएटिविटी रहते हो, यू नीड टू इवन यू नीड टू यूटिलाइज रिसोर्सेस, इसलिए भी आप क्रिएटिविटी, इसलिए भी आप मोटिवेट होते हैं कि क्रिएटिविटी हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। अभी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था। इन दैट व्हाट वी हैव लर्न दैट क्रिएशन ऑफ इनोवेटिव आइडिया इज द बिगेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएटिविटी क्यों जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज थ्रू क्रिएटिविटी वी कैन हैव इनोवेटिव आइडियाज, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएटिविटी होना चाहिए जिससे इनोवेटिव आइडिया जनरेट हो। उसके बाद हमने ये देखा था कि no, you need to, if you need to improve your existing product, ठीक है, novel way to develop and improve the product, whenever you want to change your product, whenever you need to improve the product, at that time also you need to have a creativity in the entrepreneurship, then only you will try to change the existing product, इसलिए भी हम यहाँ पे there is an importance of creativity in entrepreneurship and growth of new niches with creativity and entrepreneurship. That means कि यहाँ पे new concept आपको अपने business में develop करना है in terms of changing the manufacturing technology, in terms of changing the methods of production, mode of deliver, and even the distribution channel. You need to change your service service of the product. तो तभी भी आप अपनी creativity के कारण आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो ये सारे कॉन्सेप्ट ने। एंड main purpose to have creativity in entrepreneurship is to have a overall success. So these are the topic which have been already covered. Just I give a brief point of view in that. Techniques of stimulating creativity is also being covered. Mind mapping में क्या करोगे, तो सेंटर ऑफ द पेज में आप अपना प्रॉब्लम लिखोगे, वहां से आप बहुत सारी लाइन ड्रॉ करोगे, हर एक लाइन जो आपने ड्रॉ की वहां पे कीवर्ड्स लिखोगे और उससे आप अपना माइंड पे मतलब अपने माइंड पे फोकस करके आप उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है तब माइंड मैपिंग एक टेक्निक है जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी को टेक्निक्स जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हो। ब्रेन स्कैमर मतलब क्या करोगे, you will identify the list or that will help an entrepreneur discover any changes related to existing product को चेंज करना है तो वो सारी लिस्ट आप आइडेंटिफाई करोगे जिससे आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो। दैट इज अ स्कैमर। ब्रेनस्टॉर्मिंग यू नो वेरी वेल कि हर एक एम्प्लॉयज को ये बोला जाएगा कि आप अपने आइडियाज वेदर वो लॉजिकल है कि इलॉजिकल है, वेदर वो गुड है कि बैड है, वो हर एक आइडिया को कंसिडर किया जाएगा और उसमें से जो बेस्ट आइडिया है वो क्वालिटी वन, मतलब क्वांटिटी ऑफ आइडिया जनरेट होगा बट उसमें से क्वालिटी वन सिलेक्ट होगा। दैट इज वाज योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। नाउ टुडे इन दिस सेक्शन वी विल मूविंग टुवर्ड्स अ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हाट इज द मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द क्रिएटिविटी और टू हैव अ क्रिएटिविटी। नाउ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि मैनेजर सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है कि एम्प्लॉय को इस तरीके से एग्रीमेंट करे कि जिससे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में का तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएटिविटी मेंटेन करे। तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स manager a supervisor responsibility and duty to involve and to engage employment towards the creativity in an entrepreneurship, in a business or in an organization. now ये creativity हम कैसे बढ़ा सकते हैं through a manager। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, right people मतलब क्या हुआ कि जब भी आप creativity team generate करते हो, whenever you are building your best creative team you need to have a best people at the right number of them। ठीक है, बेस्ट लोगो चाहिए और सही मतलब राइट नंबर, यू नीड टू हैव अ बेस्ट पीपल एंड नंबर जो हमें टीम जो हम क्रिएट करने हैं उसमें नंबर जो चाहिए मतलब एम्प्लॉयज जो चाहिए वो भी आपका राइट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यू नीड टू असेस राइट पीपल जिसके पास टेक्निकल स्किल है, कोलैबोरेशन एबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है एंड टीम्स है। स्किल्स में मैनेजर को
has a manager job, you need to ensure that individual on your creativity term should have a technical skill and even your expert knowledge, जिससे उसके पास sufficient level of experience हो, जिससे वो अपना वो experience जिसके थ्रू हमारा creativity बढ़ा सकते हो। वर्क प्लेस फिट मतलब उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और उसको जो जॉब में फिट किया है वो सेम होना चाहिए। सो राइट फिट नीड मोर देन द रोड स्किल, ठीक है। मतलब राइट फिट मतलब क्या हुआ कि जिस हिसाब से जॉब डिस्क्राइब किया होगा उसी हिसाब से अपने बंदे को रिक्रूट किया होगा, तब आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ सकती है। टीम साइज मतलब आपके यहाँ पे क्रिएटिव टीम जो आप बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा नंबर को बढ़ा के आपको वो नहीं शो करना है, लेस नंबर, बट you need to make sure that creative team building success is making sure you have a right staffing level। आपका लेवल जो है, साइज ऑफ लेवल जो है क्रिएटिव टीम का वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट समझ में आया कि मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ, मैनेजर एंड सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंगेज ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टुवर्ड्स क्रिएटिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन एंटरप्रेन्योरशिप। राइट पीपल मतलब क्या होना चाहिए, जब भी आप क्रिएटिव टीम बिल्ड करते हो तो यू नीड टू हैव अ बेस्ट पीपल, ठीक है, जिसके पास टेक्निकल स्किल है, जिसके पास कोलैबोरेशन एबिलिटी है, जिसके पास प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। अभी स्किल में कौन से स्किल होने चाहिए, टेक्निकल एंड एक्सपर्ट स्किल, और अपना खुद का एक्सपीरियंस उसको खुद के एक्सपीरियंस से जो स्किल है उससे जनरेट की वो भी होनी चाहिए। वर्क प्लेस फिट मतलब क्या हुआ, जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपने दिया होगा उसी हिसाब से आपको बंदे को रिक्रूट करना होगा, जिससे हम उसकी पर्सनैलिटी, उसके सॉफ्ट स्किल, उसके वर्क स्टाइल को हमारी वर्क प्लेस कल्चर के साथ फिट कर सकते हैं। तो वर्क प्लेस फिट मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है उसी हिसाब से बंदे को रिक्रूट करोगे। टीम साइज मतलब जो आपने टीम क्रिएट किया है उससे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो लेवल है स्टाफिंग का वो ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं हो, सफिशिएंट स्टाफ हो जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। द राइट प्रोसेस, सेकेंड वन पॉइंट इज द राइट प्रोसेस। व्हेनेवर यू आर हैविंग योर क्रिएटिव टीम, ठीक है, आपका जब भी बेस्ट क्रिएटिव टीम है मीन्स योर टीम मेंबर आर नॉट जस्ट मतलब पैशनेट नहीं है, दे आर क्रिएटिव, दे आर ऑल्सो प्रोडक्टिविटी है एंड दे आर ऑल्सो एफिशिएंट। आप क्रिएटिविटी टीम जो जनरेट कर रहे हो वहां पे दे आर मोर क्रिएटिविटी, दे आर मोर प्रोडक्टिविटी, दे आर मोर एफिशिएंट। अभी टू बी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंट आपको पहले उस क्रिएटिव टीम को आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है, क्लियर वे में डिफाइन करना है कि आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, तभी वो क्रिएटिव टीम उसी हिसाब से काम करेंगे। तो इफेक्टिव टीम हैव अ लीडर हु सेट्स अ टेंजिबल टारगेट। जैसे कि कोई भी इफेक्टिव टीम का एक लीडर होगा जो टारगेट सेट करेगा, डेडलाइन सेट करेगा, प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होगा वो सेट करेगा, जिससे हमारे गोल एंड एक्सपेक्टेशन जो है वो अचीव्ड हो। तो राइट प्रोसेस मतलब एक सही प्रोसेस से हमारा क्रिएटिव टीम को काम करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपकी एक टीम बनी है, तो टीम जो आपकी बनी है वो सारे टीम के मेंबर क्रिएटिविटी है, सारे टीम के मेंबर प्रोडक्टिविटी है, सारी टीम में एफिशिएंट वे में काम करने वाले। तो आपको जो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंट को बढ़ाना है थ्रू योर क्रिएटिविटी टर्म, तो आपको उस टीम को क्लियर वे में डिफाइन करना है कि आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसी के बेस में आपको इफेक्टिव टीम हैविंग अ लीडर, ठीक है, कोई भी टीम का एक लीडर होगा, उसको क्लियर वे में डिफाइन करना है कि टारगेट्स क्या है, डेडलाइन क्या है, प्रोडक्शन का शेड्यूल है, जिससे हमारे गोल्स और हमारे एक्सपेक्टेशन को हम अचीव कर सकते हैं सही टाइम से। थर्ड वन इज राइट लीडरशिप, ठीक है, दैट इज अ लीडरशिप अप्रोच। जैसे कि कोई भी आप बिना डाउट के, ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप कब सॉल्व करोगे, जब आपके पास कोई लीडर रहेगा। तो without a doubt your creative team leader must have technical experts to communicate with the team, but that's not what will make him or her effective leader। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब भी आप अपने क्रिएटिव टीम का लीडर सिलेक्ट करते हो तो ऐसे वे में लीडर को सिलेक्ट करना है। यू नीड टू हैव अ बेस्ट लीडर विच आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट योर विजन एंड इंस्पायर अदर्स टू क्रिएट, ठीक है। आपको ऐसे लीडर को आपको टीम में मतलब टीम में ऐसा लीडर होना चाहिए जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में मतलब लीड भी कर सके और वो अपने
लोगों को वो लीड भी कर रहा है पर उसके साथ वो खुद भी चल रहा है, ठीक है। द बेस्ट लीडर जहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना है, यू नीड टू कम्युनिकेट योर विजन, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है आपका विजन क्या होगा, ठीक है, इन योर टीम, ठीक है। टीम में काम करोगे तो टीम का विजन क्या होगा, टीम को कम्युनिकेट भी करना होगा वो विजन, और इसी से वो इंस्पायर करेगा, ठीक है। तो उसका नेचर जो होगा वो हम्बल होना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए एंड डिसेंट वे में उसको बिहेव करना है। तो इन जनरल creative team leader should focus on first open communication between a team member and management. There should be an open communication, there should not be any hidden communication, ठीक है, मैनेजमेंट में और आपके यहाँ पे टीम मेंबर में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर कि जब भी आप टीम में काम करते हो तो यू नीड टू अप्रोच, ठीक है, आपका मेन टीम बेस्ड अप्रोच है तो यू नीड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, डोंट जस्ट टेल आस्क हाउ अदर्स वुड हैंडल प्रॉब्लम और साइड बैक, ठीक है। आपको बोलना नहीं है पर आपको आप उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं वैसे वे में आपको बिहेव करना है एज अ लीडर। उसके बाद यू नीड टू फोस्टर योर सेफ टू फेल एंड सेफ टू रिस्क एनवायरमेंट, ठीक है। फेलियर से कैसे बचे और रिस्क के कैसे बचे वो एनवायरमेंट आपको क्रिएट करना है आपके टीम मेंबर में, सो इट कैन हेल्प टू हैव अ थ्रेट अगेन अ रिस्क एंड फेलियर, ठीक है। नाउ लास्ट वन, लास्ट टू, दैट इज योर राइट एनवायरमेंट। राइट एनवायरमेंट मतलब क्या हुआ कि जब भी आप क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हो आपके एंटरप्रेन्योरशिप में का तो ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक एनवायरमेंट होना चाहिए ना जिससे वो क्रिएटिव टीम काम कर सकते हो। तो क्रिएटिविटी टीम नीड अ क्रिएटिव वर्क स्पेस जहाँ पे इंस्पिरेशन, जैसे कि आपको यहाँ पे जब भी कोई आपको नई चीज करनी है तो यहाँ पे कोई रुकावट नहीं हो सकती फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट, ठीक है। देयर शुड बी फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी इन योर टीम फिजिकल एनवायरमेंट टू इंस्पायर योर क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे टीम में जो बंदे काम कर रहे हैं उसको ऐसा एनवायरमेंट मिलना चाहिए कि जिससे वो अपनी जो टीम में जो अपॉर्चुनिटी वो जनरेट कर रहा है वो एक्सपोज कर सकता है अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट में। तो उसको ऐसे वे में टीम में काम करना है जहाँ पे कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरमेंट है, स्ट्रक्चर वे में डेस्क आपका डिजाइंड है जहाँ पे हर एक टीम मेंबर ओपन स्पेस से काम कर रहे हैं और आपका क्रिएटिव टीम जो है जहाँ पे एनवायरमेंट फ्रीली होगा तो वो इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिविटी रिजल्ट देगा। तो दैट इज के राइट एनवायरमेंट मतलब आपके एंटरप्रेन्योरशिप में राइट एनवायरमेंट होना चाहिए फॉर द क्रिएटिविटी टू बी इंक्रीज इन योर एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट वन इज योर राइट विजन। It's been an integral that your creative team should understand the bigger purpose of the project department and company। आपकी जब टीम बनती है तो आपको एक बिगर प्रोजेक्ट के साथ डील करना चाहिए, जिसको आपको बिगर पर्पस के साथ आपको डील करना चाहिए जिससे आपको प्रोजेक्ट अचीव कर सकते हो, डिपार्टमेंट अचीव कर सकते हो एंड कंपनी। जैसे कि विजन आपको क्लियर होगा ना, दैन ओनली यू कैन हैव अ मिशन एंड यू कैन वर्क टुगेदर एंड टू सम वन ग्रेटर गोल। आपको पता है, आपने सीखा है इकोनॉमिक्स में कि विजन क्या होता है कि जो फ्यूचर में हम बनना चाहते हैं और उसी को अचीव करने के लिए हम मिशन सेट करते हैं। तो जब विजन क्लियर होगा एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योर का, कि क्या फ्यूचर में आप बनना चाहते हो, तो क्लियरली आपका मिशन होगा विच विल हेल्प एन इंडिविजुअल टू come together to serve a greater goal. So this is nothing but a core of an effective creative term to understand not just for your individual contribution but to have a greater picture. That was your right vision. Okay, so this was your topic about your manager responsibility. तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फर्स्ट वन, राइट बंदे आपको राइट बंदे आपके क्रिएटिव टीम में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद राइट प्रोसेस, ठीक है, सही ढंग से आपको अपनी क्रिएटिविटी को ऑर्गेनाइजेशन में करता एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ाना है। राइट लीडरशिप मतलब क्या हुआ कि आपके टीम में एक राइट लीडर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे राइट एनवायरमेंट, आपका खुद का एंटरप्रेन्योरशिप का एनवायरमेंट भी एक फ्रेंडली एनवायरमेंट होना चाहिए जिससे हम क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। एंड राइट विजन मतलब यू शुड हैव अ क्लियर विजन अबाउट व्हाट यू वांट टू बी देयर विद इन 5 years, for the 5 years और for the 10 years। तो that will be clear about कि हमें मिशन क्या बनना है और हमें कैसे वे में उस विजन को अचीव करना है। So this was your topic related to manager responsibility। उसमें हमने देखा right people, right process, right people, process, right environment, right leadership and right environment and right vision। So hope you are clear with this video। Just go through the topic and then we will have its doubt section in our live section। Thank you students for listening।